स्वागत है आपका हिमकॉम न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा और आज हम मिलने वाले हैं गरिमा कौटेकर से, जो पिछले साल मिसेस महाराष्ट्र भी बनी थी और आज हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो मिसेस गरिमा कौटेकर जी, तो बताइए कि आपकी जर्नी कैसी थी यहाँ तक आने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा कौटेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी एक्चुअली एक सपना होता है, हर किसी का एक सपना होता है और वो सपना पूरा करने के लिए हर किसी को स्टेप उठाना पड़ता है। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं पार्टिसिपेट करूँ एक अच्छे और ट्रस्टेड और बढ़िया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मुझे खुद को ग्रूम करने के लिए काफ़ी मौके मिले। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई एम पार्टिसिपेटिंग राइट नाउ एज ए गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया. I won the title of Mrs. Maharashtra, Empress of Maharashtra 2021 last year. So this is the another milestone in my goals. So right now I'm finalist of Mrs. India, and definitely I'm feeling very excited. And girls here, golden girls, a golden day for you because you are going to be winning amazing titles today, innumerable titles. I think everybody is going to go with something in their hands today. So all the best to you girls, all the best. So welcome to Gೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ Mrs. India 2022, powered by Reliance Jewels in association with India Luxury Foundation. And today, as we all know, is a subtitle crowning ceremony. And yesterday we had a fabulous talent round, and each one of you actually excelled in every performance that you did. In fact, the judges ko itni mushkil hui decide karne mein that who is the actual winner. So we'll be having the results soon of your hard efforts. I'd like to first of all call upon stage our directors of the company, the Diamond Publications, who have been running this show so successfully, and this is the first beauty pageant for all the contestants out here, the Mrs. Gೃಹಲಕ್ಷ್mis, who will be felicitating all the judges. So put your hands together for the directors of the company, Vandana Verma and Manish Verma. You know, the applause should be like really powerful. Polite applause nahi chahiye. Woo! And now I would like to call my first judge. He's a very, very known name in the FDCI circle. In fact, Mr. Sunil Sethi swears by his designs and his the one and only Saman Chauhan. Saman, and now we have a pageant mentor for Gೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ Mrs. India, Mrs. Sonalika Sahai, a supermodel and an entrepreneur. Especially for you gorgeous girls from Bollywood. A Bollywood star, the famous TV actress currently playing Kashi Bai from Kashi Bai Baji Rao Balal on ZTV, actress Riya Sharma. Oh, come on, loud applause, ladies. Next we have somebody from abroad, an ambassador, H.E. Fleming Raul Duarte. Doc H.E. Fleming Raul Duarte. Come on, let's hear it for him. Encouraging each other, standing up for each other, having each other's back. Yes? Congratulations. वंदना जी, आप आज फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। उसके अपने आप दोनों हम प्रोग्राम के बारे में अरे रुक जाओ अभी एक मिनट। क्या फंक्शन था, क्या था, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए? जी, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 हमने ये लॉन्च किया है विद द सिंपल एम। हम विमेन हाउसवाइफ्स को इंस्पायर करना चाहते हैं टू एस्पायर, एंड वी वांट देम टू कम आउट एंड शाइन ब्राइट। वी वांट देम टू अचीव, सबके अंदर कोई ना कोई एक ड्रीम होता है, सो वी गिविंग देम दिस प्लेटफॉर्म टू कम आउट एंड शो देयर पोटेंशियल। मेरा आपसे सवाल है कि आप खुद को गृहलक्ष्मी से कैसे जोड़ती हैं?
मैं खुद को गृह लक्ष्मी से ऐसे जोड़ती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी एक एक्टर बनने का मैंने भी सपना ही देखा था, तो वैसे ही उनका भी सपना है कि एक बार हम लोगों के सामने वॉक करें, या एक बार बात, या ऐसे कपड़े पहने, या ऐसे बाल बनाए, या ऐसा मेकअप करें। ये तो छोटे छोटे सपने थे जो मिलकर इतना बड़ा ये बन गया, और उनके सारे सपने इन्होंने पूरे किए। वैसे ही मेरा भी सपना पूरा हुआ था, तो आई कैन रिलेट विद देम लाइक दैट। किरदार प्रियंका चोपड़ा ने भी निभाया था, तो क्या आपको कभी उनसे कंपेयर किया गया हो, या आपने कभी ऐसा कुछ सुना हो दैट यू आर प्लेइंग बेटर देन हर और समथिंग लाइक ऐसा? बेटर तो नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। शी इज़ प्रियंका चोपड़ा। मैं खुद को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात से मैं बहुत नर्वस थी जब मुझे ये कैरेक्टर मिला, एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मैं पीछे हट गई थी यही बात से कि मैं नहीं झेल पाऊंगी। अगर मुझे कोई क्रिटिसिज्म मैं झेल सकती हूँ, लेकिन जो ये बात होगी कि यार या कंपैरिजन, तो वहाँ ना मैं थोड़ी एंग्शियस, मैं डाउन हो जाती हूँ। लेकिन इट्स अ चैलेंज। माय मदर सेड डू इट। आप इतना लोगों को ज्ञान देते हो, खुद पर भी अप्लाई करो। तो हाँ, डर तो बहुत लगा, अभी भी डर लगता है। एवरी डे आई ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ, एवरी डे आई फाइट, एवरी डे आई वर्क हार्ड। बस इतना कि अगर मैं -1% भी कर लूँ जो प्रियंका चोपड़ा ने किया, तो आई थिंक मैं थोड़ा कुछ तो हासिल कर मैम, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो आपकी लाइफ का रोल मॉडल? मेरी लाइफ में मेरा सबसे पहला रोल मॉडल ऑब्वियसली मेरी मदर है, क्योंकि उन्होंने बहुत फाइट किया है। अब ये नहीं बताऊंगी कैसे, बट हर किसी के लाइफ में अपने बैटल्स होते हैं। और दूसरी रोल मॉडल मेरी काशीबाई ही है, बिल्कुल, क्योंकि मैं उनका किरदार प्ले कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एवरी सीन में मैं फील कर पाती हूँ कि वो कितने कठिन दौर से गुजरी। लेकिन अगर ये सिचुएशन में मैं होती तो मैं तो कब का गिव अप कर लेती, बट इन्होंने नहीं किया। आप सबको पता है मस्तानी की स्टोरी, मस्तानी के आने के बाद तो वो कितना टूटी होगी, लेकिन वो पेशवन बाई थी, तो वो पेशवन बाई बनकर उन्होंने फाइट किया। मैम एक सवाल, जैसा कि आपने देखा कि हमारी गृह लक्ष्मियों को अपने जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप इस बात से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हिमकॉम न्यूज़।